Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and we are starting with the modern history of India first lecture. Now in this lecture we will be covering the era of Mughals. I will try to keep all the lectures within the range of 20 to 25 minutes. And before I start the lecture, I would like to give you the schedule for the next 1 week, all the things that we would be covering. And each of these lectures would be released a lecture a day in that format, and we'll be covering all the topics that I'm going to list here for the next 7 days. तो हम सारे लेक्चर जो हैं हर रोज़ एक लेक्चर रिलीज़ करेंगे. अगले एक हफ्ते तक के लिए आपको मैं शेड्यूल दे रहा हूँ. हर रोज़ एक लेक्चर रिलीज़ होगा. तो पहला होगा द एरा ऑफ मुगल्स, और उसके बाद जो इसके अंदर हम सब मुगल्स को कवर करेंगे. मुगल्स को कवर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्रिटिश की एंट्री इंडिया में कैसी होती है हमें ये समझना ज़रूरी है, अगर हमें ये जानना है कि ब्रिटिश इंडिया से जाते कैसे हैं. टू अंडरस्टैंड that how British exit in India, we also must understand how British enter India. And entry of Britishers to India is incomplete without understanding of the Mughals in India. That is number one. So while lot of things were happening when Mughals were there here in India, a lot was happening at the Marathas end. We will be talking about that in detail, though it is more of a political history and of less importance to our exams in general. And then very important thing which is important for exams also is Indian states, all the Hyderabad, Awadh, Kerala, Rajput states, Jats, Pathans, Sikhs, and finally Bengal. And we'll talk about all these states in a little detail. And understanding of these states is important to appreciate that how things led to the revolt of 1857 and then the nationalist movement and everything. तो इन स्टेट सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे कि इस दौरान राइट व्हेन मुगल्स, मराठास एंड ऑल दी स्टेट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट दी स्टेट्स, व्हाट वाज द in general, this will be very briefly done, social, economic, educational, cultural condition in 18th century. This will be done in let's say one lecture. Mughals would be done in 2 lectures, Marathas would take 1 lecture, states would probably take 2 lectures. I'm not sure today, but in any case all this would be covered in next 1 week. And there's one more thing that we'll be covering which will take at least 2 lectures, and that is the coming of the European companies to India. That how, see, we normally talk about British only. I'll talk to you about Portuguese, Dutch, French, all these people, how they came to India, why they were not able to sustain in India, why were only Britishers able to sustain in India. So such details would also be discussed in this. Now before I proceed ahead, I'd like to give you a very small detail about how I would be teaching these, because all these things are happening in parallel. So when we learn about these things in parallel, it is not possible that to understand it completely, क्योंकि हम सारी चीज़ों को ऐसे एक साथ नहीं पढ़ सकते कि अगर मुगल का फारूकसियर राजा चल रहा था या अकबर राजा चल रहा था, उस टाइम पर मराठा क्या कर रहे थे, और उस टाइम हैदराबाद में क्या हो रहा था, और उसी टाइम पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, और उसी टाइम यूरोपियन क्या कर रहे थे. तो एक ही बात में मतलब आप एक बात को समझिए, आप ये नहीं कभी नहीं जान पाएंगे कि इतनी कन्फ्यूजन हो जाएगी कौन क्या कर रहा है और कौन कैसे आगे बढ़ रहा है, तो चीज़ों को जोड़ना मुश्किल हो जाएगा. मैं इसके लिए करूंगा क्या, I'll explain it to you. What I'll do is, suppose this is the time period and this is for, let's say, Mughals, right? Now 1526 they'll start and this goes up to 1857. This is just for an example. अब अगर 1526 में मुगल्स आए और इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने आपको ये, दिस इज लाइक मुगल हिस्ट्री, मुगल history. So I'll teach you about the Mughal history here. Now what I'll do next is that when I'm done with this Mughal history, and this will be done very briefly, हम मुगल्स की कोई बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ऊपर से आपकी समझ के लिए. तो एक बार जब हमारी मुगल हिस्ट्री हो जाएगी फिर मैं आपको जैसे मराठास के बारे में बताऊंगा, ठीक है जी. तो फिर ऐसे मराठास चलेंगे फिर. सो अगर मराठास चल रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो रन ऑलमोस्ट द सेम टाइम पीरियड जो इनका चल रहेगा, मुगल का रहेगा. अब व्हाट आई विल आल्सो कीप डूइंग इज कि मराठा के जब ये बता रहा हूंगा, आई विल कीप ऑन इंटर रिलेटिंग इट टू मुगल हिस्ट्री, कि जब मराठा में यहाँ पर अगर कुछ मान लीजिए इंसिडेंट्स होता है तो उस टाइम पे मुगल हिस्ट्री में क्या हो रहा था. तो सेम गोज विद ऑल दोज थिंग्स. वी विल बी टॉकिंग अबाउट Hyderabad and all the other states that I talk about, let's say Bengal and then Awadh.
So we'll talk about all those Rohilla, Sikhs, Mysore, I mean everyone, all the areas around Delhi, we'll talk all about it. So we'll begin with the today's lecture, and it is about the Mughals in India. Now the important themes which mark the beginning of modern history in India वो क्या हैं? देखिए औरंगजेब की बात है, यहाँ से हम शुरू करेंगे कि when Aurangzeb passed away at Ahmednagar, Khuldaabad, now here Mughals have started declining. और एक बारी क्या हुआ, जब औरंगजेब का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, वहां से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है. लेकिन उसी टाइम पे औरंगजेब के बारे में आपको कुछ बातें मैं बता दूं कि जो औरंगजेब था, ये इसकी एट हिज टाइम ओनली, अगर आप जोग्राफिकल एक्सटेंट देखें कि कितना एरिया फैल गया मुगल्स का, तो ये बहुत बड़ा था इस टाइम पे. और आप हैरान रह जाएंगे कि ये ईस्ट में इट रैन अप टू फ्रॉम अहोम तक चला गया, घरगांव में असम की तरफ, और इस तरफ तंजौर तमिलनाडु तक भी इसने अपना एरिया फैला लिया, और उस तरफ नीचे कर्नाटका के अंदर भी गोलकोंडा और उस तरफ एरिया भी ये ले जा चुका था. तो जो बिगेस्ट रेजिस्टेंस आ रही थी इसको, जो आई थी औरंगजेब को उस टाइम पे, वो मराठास से आई थी, और उनके अगेंस्ट जीत भी नहीं पाया था. हालांकि इसने सेकंड लार्जेस्ट इसका रूल रहा. सबसे जो बड़ा इस टाइम पे जो रूल रहा था वो था अकबर का. सो वी नो दैट I'll just change the color so that it's easily visible. Okay, so सबसे बड़ा जो रूल रहा इस टाइम पर वो था, longest rule was Akbar, right? Akbar was from 1556 to 1605, and Aurangzeb had the second longest. And this, or where was Aurangzeb? This Aurangzeb was 1658, and if I recall it right, yes, it is 1658 to 1707. And this 1707, this year precisely, is called the beginning of the modern history of India. But how do we reach the modern history 1707? We will need to understand a little bit of background, and this is what we will be doing in today's lecture, right? It will be done very quickly, so you understand this lecture. And see, there's one more suggestion. मेरी आपसे एक suggestion है, जब कल अगला lecture आए, आज आप इस lecture को सुन लीजिए, कल अगला लेक्चर है, लिसन टू दिस लेक्चर अगेन, आपके लिए इस चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा. तो सी व्हाट वाज हैपनिंग, सी ही व्हाट ऑल एरियाज ही कॉन्कर्ड. नाउ यू व्हाट वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर. सी ही सेड घरगांव वाज देयर, देन तंजौर वाज देयर, देन कर्नाटका हैज बीजापुर एंड गोलकोंडा इन आंध्रा एट दैट टाइम. ऑल दीज एरियाज ही दैट वाज हिज एक्सटेंट. एंड हु गेव हिम बिगेस्ट रेजिस्टेंस? If he was such an aggressive person that who spread Mughal empire across India, so resistance to him was offered by Marathas, right? Now he could not win in spite of having this long regime. That shows that, now question can be, was the Deccan policy, Deccan मतलब जो साउथ की पॉलिसी जो थी औरंगजेब की, क्या वो फेलियर थी? हाँ जी, वो फेलियर थी कह सकते हैं एक नजरिए से, क्योंकि हालांकि उसने एरिया तो अपना वहां पर फैला लिया, लेकिन फिर भी वो डीप डेक्कन में नहीं जा पाया था, और मराठास को तो फिर वहां पर हरा नहीं पाया था. और उसकी पॉलिसी को थी क्या? उसकी पॉलिसी को हम एक टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं अग्रेसिव इंपीरियलिज्म. दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ सी व्हाट इंपीरियलिज्म मींस. इंपीरियलिज्म हमने कहा अग्रेसिव इंपीरियलिज्म. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. आई जस्ट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू मस्ट रिमेंबर दिस बाय हार्ट. इंपीरियलिज्म क्या होता है, इसको रट्टा मार लो जी से. इंपीरियलिज्म मींस हैविंग अ सबऑर्डिनेट और अनइक्वल कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एन एम्पायर. इंपीरियलिज्म का मतलब होता है एक ही रूल के नीचे अलग अलग स्टेट्स का आपस में जो रिश्ता है वो कैसा है? सबऑर्डिनेशन का है. एक सीनियर है, एक जूनियर है, एक बड़ी है, एक छोटी है. कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वो कुछ आगे रहती हैं, कुछ पीछे रहती हैं. खुद वो आगे रहते थे जो रूलर्स हैं, बाकियों को वो पीछे रखते थे. सो दिस इज हाउ इट वेंट. सो नाउ आई विल शो यू दिस मैप ऑफ मुगल एम्पायर. इफ यू सी, now this is extent of the Babur's rule in 1530, right? Extent of Babur's rule in 1530. This is this purple color over here. If you see, this is not a very big area, it's just this much. Mainly the Great Plains of northern India and partially running into Rajasthan, UP,
ऑल दिस एरिया। तो ये जो मेन प्लेन्स हैं और ये पाकिस्तान तक जाता था, जैसे कि हम देख सकते हैं ये कंधार का एरिया और ये काबुल भी इसकी तरफ इसी, तो ये ऑल दिस एरिया इज गोइंग ऑन। फिर उसके बाद क्या हुआ जी, ये हम सबकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आगे जाकर भी पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ मैप पर फोकस कीजिए। तो अब आगे देखें तो अकबर का जो था, देखिए बाबर, ठीक है जी, बाबर के बाद अब क्या हुआ, बाबर के बाद हुमायूं आया। हुमायूं के टाइम पर कुछ एरिया ज्यादा एक्सपैंड नहीं करता है, पहले राजे के टाइम पर करता है और फिर तीसरे पर करता है, और नंबर पर एरिया एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है जी। हालांकि और तो 1 और 3 पर अभी यहां पर कर रहा है एक्सपैंड। अब अगर बाबर अकबर का आप देखें तो दिस इज येलो पार्ट ऑल्सो, अब इसका येलो पार्ट भी इंक्लूड हो गया। देखो कोस्टल एरिया उसने अपना ले लिया कुछ, उस तरफ फुट हिल तक पूरी हिमालय का कवर कर लिया, और देन राइट इनटू अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान का एरिया बहुत बड़ा, अफगानिस्तान का, और दिस वे इसने पूरा कवर कर लिया। और फिर जब औरंगजेब आता है, ही एड्स इवन टू द पिंक एरिया। नाउ यू कैन सी दिस, सी द एक्सटेंट द होल ऑफ इंडिया, राइट, whole of India in northeast if you see such a huge area, this is big, वहां पर ये इतना बड़ा है, और ये नीचे देखें अगर आप, ये इतना इस तरफ फैल गया। तो लुक एट दिस मैप, दैट मीन्स औरंगजेब के टाइम पर बहुत ज्यादा ये जो एरिया फैल गया था। सो नेक्स्ट नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑल द मुगल रूलर्स राइट फ्रॉम बाबर। एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बाबर से शुरू नहीं हो रही है, लेकिन हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि इन सब के बारे में 2-2, 4-4 बातें जान लें, एंड आमतौर पे पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बाबर के साथ क्या कहानी है, बाबर 1526 से आया और 1530 तक इसने रूल किया। इसकी एंट्री कैसे हुई थी, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड दस ही एंडेड द फर्स्ट अफगान अंपायर। इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और पहला अफगानिस्तान अंपायर, अफगानियों का जो अंपायर था वो खत्म हो गया। जो लोधी गार्डन्स हैं, जो लोधी डायनेस्टी जिसको इसने इब्राहिम लोदी को जब हराया था, वो इट वाज कार्व्ड आउट बाय ब्रिटिशर्स, जो दिल्ली के अंदर लोधी गार्डन बने हुए हैं। खैर जस्ट दैट इज जस्ट टू मेक यू रिमेंबर इट। अरुण जेटली शायद वहीं सैर करने जाते हैं हर रोज। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, आप अरुण जेटली को रिकॉल कर सकते हैं वहां पे। तो फिर अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, इसके अंदर क्या होता है, बाबर जो था ये इसका लिटरेरी टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है जी। अब इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बाबर नामा। अब जो बाबर नामा बुक है, यू कैन सी इट ओवर हियर, दिस बुक। नाउ इट वाज रिटन इन टर्किश। हाउ डू वी नो दिस इज टर्किश? या तो आपने पढ़ी हो बुक, सी यू, बट द वर्ड नामा, सी यू मस्ट रिमेंबर दैट wherever nama is there, nama means that particular writing was in Turkish, right? Now see, and what were the contents of this book? Can you think of कि बाबर नामा, this is autobiography, इस बुक में कैसी बातें हुई होंगी, उसको जो पसंद है, वॉट एवर इज लाइक्स डिसलाइक, खास करके इंडिया को लेकर, इंडिया के बारे में उसे बहुत सी चीजें नहीं पसंद थी। उसने सोशल कंडीशंस, फेयर्स, हमारे त्योहार, फेस्टिवल सारे, और कोई ट्रैवलर इंडिया में उनके एक्सपीरियंस, ऐसी सारी चीजें लिखी। लेकिन बाबर की बुक को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में ताकि और ज्यादा लोग इसे पढ़ सकें, एंड जिस बंदे ने इस बुक को ट्रांसलेट किया था, पर्सन हु ट्रांसलेटेड बाबर्स बाबरनामा व्हिच वाज रिटन इन टर्किश इनटू द पर्शियन लैंग्वेज वाज अब्दुर रहीम खाने खाना। खाने खाना मींस खानों का खान, और तो अब्दुर रहीम खाने खाना, दिस वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय अकबर। एंड याद रखिएगा जो ये ट्रांसलेशन हुई है बाबर के टाइम पर नहीं हुई है, ये बहुत बाद में जाकर हुई है, अकबर के टाइम पर हो रही है। अब अब्दुल रहीम के बारे में एक शॉर्ट में अगर आपको चीज बता दूं, ये बैराम खान का बेटा था। बैराम खान अकबर का गार्डियन था, और बैराम खान को अकबर ने मक्का भेज दिया था। कोई बात हुई थी ऐसा मान बस कि उसको वहां पर उसको भेज दिया क्योंकि कुछ इश्यूज हो गया था, हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना है। तो और दूसरी बात, चंगेज खान जो था वो जो था बाबर का एंसेस्टर था, एंड ही दस बाबर जो सोचता था एंड कि हिमसेल्फ टू बी ए रूलर हेयर, ठीक है जी, ऐसा चल रहा था। बाबर के बारे में है वो चंगेज खान वाली बात, ना कि अब्दुल रहीम के बारे में यहाँ पे। अब बाबर को एक चीज का बहुत शौक था, वो था अल्कोहल का, ठीक है जी, ग्रेट मैन लाइक ग्रेट वाइन, और इसीलिए अब वहां पर काबुल के अंदर जहां पर बाबर की मजार बनी हुई है, वहां पे अब भी शराब का प्रसाद चढ़ता है, सो कॉल्ड प्रसाद। तो नेक्स्ट इज जी हुमायूं। बाबर था 1526 से 1530, एंड नेक्स्ट इज हुमायूं। हुमायूं मूव्ड फ्रॉम 1530 टू 1540 एंड देन 1556।
ये हुमायूं की टूम है जो आप साइड पे देख रहे हो ना, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रिसेंटली रिस्टोर भी किया है। और अब बाबर जो हुमायूं के ऊपर बुक लिखी गई उसका नाम था हुमायूं नामा। आप क्या सोच सकते हैं अगर ये नामा है तो कौन सी भाषा में होगी? आई लीव इट टू यू, आप खुद ही सोच लीजिएगा। और गुल बदन बानो बेगम जिसने ये किताब लिखी थी, ये कौन है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात तो ये इस जो द हुमायूंस रूल जो था ये 1530 से 1540 तक था। व्हाई दिस ब्रेक? बिकॉज इन बिटवीन शेर शाह सूरी केम एंड ही वाज अ अफगानी and he established Sur Empire, and during this small period of 15-16 years Mughals were not ruling. It was actually the Suri Empire that was happening. And just to tell you something about Sher Shah Suri, he was a great administrator, and you must have heard about Sher Shah Suri Road, the GT road, and जिसने डेवलप की थी। और इसका टूम कहाँ पर है? इसका देखिए टूम पर पता नहीं क्यों क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दे आर देयर इन पेपर ऑफन। तो जिसका टूम है इट इज एट ससारम इन बिहार। ये बात है याद रखने वाले की। एक बात याद रखिएगा, इसके टूम के ऊपर बिहार के लोकल आर्किटेक्चरल जो इम्पैक्ट होता है वो दिखाई देता है हमें। अब ही वॉज नॉट अ ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट, ये कोई इसको लड़ना ज्यादा नहीं आता था। तभी तो आप देखें ना, सुर भी तो तभी बीच में आ गए, ये सूर एम्पायर वाले। तो ना ही बाबर अपने बाप की तरह ना ही अपने बेटे की तरह इसे लड़ना आता था। ऐश परस्ती की जिंदगी इसकी बीत गई। अब बाप को तो अगर शराब पसंद थी इसके बाबर को, और तो इस बेटे को तो आगे ही जाना था उससे। तो व्हाट ही लाइक्ड वाज ओपियम, राइट? तो अफीम खाने का इसको बहुत शौक था। तो ऐसा था। तो एंड नेक्स्ट थिंग इज जिसकी टूम था, दिस टूम ओवर हियर, दिस टूम वाज एक्चुअली बिल्ट बाय हिज वाइफ हमीदा बानो बेगम। याद रखिएगा, गुलबदन बानो बेगम इसकी वाइफ नहीं है, हमीदा इसकी वाइफ का नाम है। और इसने क्या बनाया था? ये वाला टूम इसने बनाया था। और इस टूम में हो क्या खास बात है? इसके अंदर डबल डोम आर्च है। तो डबल डोम का मतलब क्या है? जो ये व्हाइट कलर का यहाँ पर टूम ये देख रहे हैं, दिस टूम, ना दिस टूम ओवर हियर, दिस इज डबल आर्च। इसके अंदर भी एक आर्च है। होता क्या था कि अंदर की चीजों को मैनेज करने के लिए ऐसे टू बनाया जाता था, लेकिन वो बाहर से सुंदर नहीं लगता था। तो बाहर फिर क्या करते थे? डबल आर्च इसके अंदर बनाई जा रही थी यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हो रहा था। फिर डबल डोम जो इसकी आर्च है। अब ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, मैं आपको ये बता ही चुका हूं। अब हम बात करते हैं हुमायूं नामा की। अभी तक आपने अगर गेस नहीं किया तो दिस बुक वाज नामा मैं फिर से आपको बता रहा हूं। जो नामा होता है, नामा इज ऑलवेज इज इक्वल टू टर्किश, ठीक है जी। और जो रिटन, और ये अकबर के पीरियड में, रिटन इन अकबर्स पीरियड बाय हुमायूं सिस्टर, इसके मरने के बाद। तो अकबर के पीरियड में 2 किताबें लिखी गई जी। देखो, एक तो ट्रांसलेशन हुई बाबर नामा की, और दूसरी चीज है हुमायूं नामा लिखा गया। हुमायूं नामा लिखा था उसकी बहन ने, जिसका नाम था गुल बदन बानो बेगम। अब ये नाम तो आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो नाम ही बहुत सुंदर है। वैसे इस नाम का मतलब होता है प्रिंसेस ऑफ बॉडी ऑफ रोजेस। और अब विजुअलाइजेशन ना ज्यादा करते हुए विल मूव अहेड। थ्रू दिस शी आल्सो कन्वेड पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन एंड देयर कंडीशन। अगर अब एक लेडी उस टाइम की जो इतनी वेल अवेयर और जो थी, अगर वो बुक लिखेगी थोड़ा सा तो उसको अपना पर्सपेक्टिव आएगा, एंड दिस इज व्हाट शी डिड। सो दैट वाज अबाउट हुमायूं। नाउ लेट्स मूव टू अकबर। अब आप सबने अकबर का नाम अगर सुना हो तो सबसे पहले आपके मन में ऋतिक रोशन आ जाता है जी। बहुत सारे लोगों के मन में तो आ जाता है। तो खैर दैट वाज जोधा अकबर। इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन अकबर, जैसा कि आप देख सकते हैं। 13 साल की एज में, एट द एज ऑफ 13 ही वाज मेड द एम्परर। ही ब्रॉट द स्टेबिलिटी टू एम्पायर थ्रू पॉलिसीज लाइक मिलिट्री पॉलिसी। नाउ दिस इज बिग थिंग, बिकॉज मिलिट्री पॉलिसी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना, इसके लिए ये बातें इंपॉर्टेंट बन जाती थी। ये आगे बढ़ने के लिए जिसकी हेल्प मिल जाती थी वो ले लेता था। राजपूत तक की इसने हेल्प ले ली। अकबर को तो हमने पहले भी देखा मैप में कैसे एरिया एक्सपैंड कर रहा था वो अपना। अब अगर अच्छा वॉरियर था तो पैसे भी तो अच्छे होंगे। सी इफ यू आर अ गुड वॉरियर, सी गुड वॉरियर, ये बात को देखिए, दैट इज पॉसिबल ओनली if you have good money, right? अगर आपके पास पैसा अच्छा है
तभी आप एक अच्छे वॉरियर बन पाएंगे। और इसके लिए आपको क्या चाहिए? फॉर दिस यू नीड व्हाट? यू नीड दिस स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी, तभी तो पैसा आएगा। ठीक है ना जी। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट इज ही वॉज अ डेस्पॉट विथ पैटर्नल एटीट्यूड। अब कई लोग ना महानता जब अकबर की गिनाने लगते हैं, अकबर द ग्रेट, उसको डेमोक्रेटिक भी कहने लग जाते हैं। ही वॉज अ डेस्पॉट, ये बात नहीं हमें भूलनी चाहिए। हाँ, एक बात बहुत अच्छी थी, इसके लिए ये नहीं मैटर करता था कि आप किस रिलीजन से हैं। इस बात को तो खैर पिक्चर में बहुत अच्छे से दिखाया गया। तो आप कोई भी रिलीजन के हो, ही रिस्पेक्टेड ऑल फेथ्स, राइट, ही ब्रॉट देम ऑल टुगेदर। फिर क्या हुआ 1569 के अंदर इसने, देखो अभी क्या हुआ, 13 साल की उम्र में ये 1556 के अंदर ये राजा बन गया। अब 1569 में अ न्यू कैपिटल वाज कंस्ट्रक्टेड एट फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी कहाँ है? एक बहुत ही सुंदर जगह है आगरा के पास, और अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ऑल्सो इज रिलेटेड टू सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती। एक्चुअली वहां पे सलीम चिश्ती जी की दरगाह बनी हुई है, और आपको शायद पता भी होगा अगर आप में से कई लोग वहां पर गए हैं, वहां पर बुलंद दरवाजा भी है। बुलंद दरवाजा, आई जस्ट राइट इट अगर समझ नहीं आ रहा, बुलंद दरवाजा। ठीक है जी। अब जो ये दरवाजा, इसकी खास बात क्या है, जो जैसे अगर ये दरवाजा बना हुआ है, इट्स अ ह्यूज डोर एक्चुअली। तो यहां पर इसके ऐसे चारों तरफ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं इसके अंदर। अब जो कुरान की इस तरफ आयतें लिखी गई हैं, इसके अंदर आप नीचे खड़े होकर, जब इसके आगे ऐसे स्टेयर्स बनी होनी है नीचे, अब इसके आगे जब आप जो भी आप इसकी आयतें पढ़ते हैं, तो कई किसी भी स्टेप पर खड़े होकर पढ़िए, आपको ये आयतों का साइज जो है बिल्कुल सेम दिखाई देता है। तो वो बुलंद दरवाजा है, और इस दरवाजे के अगर आप अंदर चले जाते हैं, अंदर जाके सलीम चिश्ती जी की दरगाह बनी हुई है। तो खैर वहां पास में ही फतेहपुर सीकरी है। हम आर्किटेक्चरल हिस्ट्री को मैं अलग से भी कवर करूंगा बाद में जाके, अभी हम एक जनरल हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। फिर आगरा फोर्ट बनाया, जो अपने आप में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका टूम क्या है जी? टूम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसका टूम है आगरा में। अब आपको याद है जी उसका टूम कहाँ है? सुर अंपायर वालों का टूम कहाँ है? तो दैट सुर वालों का, सुर इज ससारम, सुर इज इक्वल टू ससारम। ये आपको याद रखने वाली बातें हैं। अब इसके ऊपर अब देखो, दो बुक्स तो इसके टाइम पर हमें पता लिखी गई। एक तो लिखी जी इसकी बहन ने, गुलबदन बानो बेगम ने, इसके हुमायूं की बहन ने, और एक अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा को ट्रांसलेट किया था टर्किश से पर्शियन में, ताकि ज्यादा लोग पढ़ सकें। ठीक है जी। सो वन इज बाबरनामा की ट्रांसलेशन, ठीक है जी, एंड वन इज हुमायूं नामा। ये हमें पता है किसने लिखा है, राइट। दिस वाज बाय गुलबदन बानो बेगम, एंड दिस वाज बाय अब्दुल रहीम। नाउ इफ वी मूव टू अदर बुक्स, अकबर नामा, अब सबका नामा लिखा जा रहा है, तो अकबर का नामा क्यों नहीं लिखा जाएगा? ऑब्वियसली एस बी सी, अगर वो नामा है तो वो टर्किश के अंदर ही आ रहा है। ठीक है ना जी। तो हिस्टोरिकल नरेशन अकबर के पीरियड की, कल्चर, पीपल, ट्रेवल कैसा था। आईन ए अकबरी इस टाइम पर एक किताब लिखी गई थी, जिसके अंदर आईन ए अकबरी, आईन एक, इसके अंदर हालात दिखाए गए इकोनॉमी के कैसे थे, रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता। देखो अगर आपको मैंने जैसे पहले बताया कि वॉर हुई, वॉर के लिए पैसा चाहिए था, इकोनॉमी चाहिए थी, तो इकोनॉमी अच्छी भी होगी, और अगर अच्छी इकोनॉमी होगी तो उसके लिखने लायक कुछ होगा। तो उसके अंदर हमने किताब लिखी जिसका नाम था आईन अकबरी, जिसके अंदर स्टैटिस्टिकल थे, बड़े बई खाता था ये, इट वाज अ स्टैटिस्टिकल अकाउंट ऑफ अकबर। Next king that comes is Jahangir, and as you can see by the paintings around, I've seen this painting, ये National Museum of India दिल्ली के अंदर ही पड़ी हैं। तो this is a Dodo's painting, so beautiful painting। हालांकि जहां पर देखे हमको मजाक ही लगता है कि क्या, लेकिन अगर आप पास से देखते हैं ब्यूटीफुल पेंटिंग है। दिस ओवर अबाउट पेंटिंग, इट्स स्टिल शाइनिंग एक्चुअली। तो जहांगीर, ही वाज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट, एंड ऑब्वियसली अगर आप ऐसी ऐश परस्ती के लिए आपके पास टाइम है, तो आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो आप क्या ही बन पाओगे, है ना जी। या तो आप पेंटिंग्स कर लो या कोई काम कर लो। एम एफ हुसैन से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो देश का प्राइम मिनिस्टर बन सके। अच्छा, जब तक वो, या तो उसे पेंटिंग छोड़नी पड़ेगी उतनी देर के लिए। तो आर्ट का था। दूसरी बात, ट्रेंड ऑफ पोर्ट्रेट पेंटिंग स्टार्टेड। ठीक है जी, मैं पोर्ट्रेट पेंटिंग आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये भाई साहब का फुल पोर्ट्रेट है। तुजू के जहांगीरी इसकी ऑटोबायोग्राफी थी, और क्लियरली अब क्योंकि आप देख सकते हैं ये इसका नाम जहांगीर नामा नहीं है, इट इज नॉट जहांगीर नामा, इट इज तुजू के जहांगीरी, एंड इसका मतलब ये जो बुक है
ये टर्किश के अंदर नहीं होगी, ये पर्शियन में होगी। नेचुरल हेरिटेज, फ्लोरा फौना पे आप देख सकते हैं इसका क्या इम्पैक्ट, कैसे इसने बनाए, जानवर बनाए, और इसने बहुत सारे एक्चुअली पेंटिंग के पास से देखेंगे इसने उस टाइम की लोकल फ्लोरा जो था और फौना सबके ऊपर इसने फोकस किया था। और तुजू के जहांगीरी भी आप इसकी किताब ये साइड पर देख सकते हैं। अब इसकी वाइफ जो थी बहुत सुंदर थी, उसका नाम था नूरजहान, लेकिन भाई देखो उसको फिर टाइटल भी देना पड़ा, उसका नाम उसको पादशाह बेगम के नाम से जाना जाता था। ये ओनली मुगल क्वीन टू गेट टाइटल ऑफ पादशाह बेगम। और जो इसकी वाइफ थी वो खुर्राम, जो इसका बेटा होता है ना शाहजहां, वो नहीं चाहती थी कि वो राजा बने, वो उसको निकम्मा लगता था, क्योंकि ही शी नेवर लाइक्ड इट। एंड देन नाउ देयर इज अ रैंडम फैक्ट अबाउट जहांगीर। जहांगीर्स अदर नेम वाज सलीम। नाउ द फैक्ट इज जो जहांगीर टू हिज कोर्ट केम टू इंग्लिशमैन। Now this is like cross reference. When I cover English, I will again be telling you, when I talk about Thomas Roe and William Hawkins, then there I will be asking you question, in whose court did Thomas Roe and William Hawkins go? ठीक है नहीं, तो जहांगीर रो, ठीक है जी, जहांगीर के पास गए। और ना बाबर, ना हुमायूं, ना अकबर, इनके पास तो कोई आया ही नहीं। और देखने वाली बात है जो ब्रिटिशर्स थे वो कौन से ईयर के आसपास आने शुरू हुए, देखो 1600 से तो वो शुरू होंगे, ठीक है ना जी। तो ऑब्वियसली इससे पहले तो वो आएंगे नहीं, 1605 में तो हमारा जहांगीर है, तो 60 इसके पास आते हैं ये दोनों। क्या करने आते हैं, क्या होता है, इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे। अभी के लिए इतना बात याद रख लो, दो लोग आए थे। क्या लेकर आए थे, एक बंदा आया था, वो अपना हॉकिंस का कुकर उठाकर लाया था और वो रो रहा था क्योंकि वो कुकर टूट गया था। हॉकिंस और रो 1615 में जहांगीर के पास आए। अगेन टूम्ब आ गया जी। अब इसका टूम्ब कहां पर है, इसका टूम्ब है लाहौर में, ठीक है जी। अब पेन एंड पेपर लेकर भी बैठ सकते हैं अगर आप कुछ रैंडम नोट्स बनाने हो, पर मोर और लेस अगर आप वीडियो दोबारा देख लें, इट विल क्विकली डन। सो आई विल मूव अहेड। नेक्स्ट इज शाहजहां, और ये हम सबका फेवरेट है। आप में से ज्यादातर लोगों ने ये जगह देखी होगी, ताजमहल, और नहीं देखी प्लीज सी इट, इट्स ब्यूटीफुल। एंड ऑब्वियसली न्यू हाइट्स इन आर्किटेक्चर इसने अचीव कर दी। और he shifted his capital to शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद कहाँ है जी, इट इज इन दिल्ली, ओल्ड दिल्ली का पार्ट है शाहजहानाबाद। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रेड फोर्ट भी इसी का पार्ट शाहजहां का, जामा मस्जिद भी इसी का पार्ट, और ये दोनों चीजें शाहजहां ने बनाई थी, ठीक है जी। शाहजहानाबाद के अंदर रेड फोर्ट और जामा मस्जिद, जो कि शाहजहानाबाद है तो शाहजहां ने ही बनाई होगी। रेड फोर्ट है लाल किला, जहां से झंडा भी फहराया जाता है, एंड इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो। दिस इज इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो चीज बनती है वो है ट्रेंड ऑफ पोर्ट्रेट पेंटिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां कंटिन्यूड। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, हु स्टार्टेड इट, दिस पेंटिंग सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय हुम, जहांगीर। सो व्हाटएवर द पेंटिंग स्टाइल दैट जहांगीर स्टार्टेड, दिस कंटिन्यूड विद शाहजहां। नाउ टूम्ब ऑफ कोर्स ऑल नो, इसका मुमताज महल के साथ ही है। और मुमताज महल का एक्चुअली असली नाम क्या था जी, अर्जुमन बानो बेगम, सब बानो बेगम है। फिर औरंगजेब जो था इसका अब बेटा आ गया, ऐसी औलाद आई, इसने अपने बाप को ही, हिज सन imprisoned him, शाहजहां that is till 1666 when he died at Agra to full। और फिर वहां पर when he was in Agra in the jail, he said, son, before I die, fulfill my last wish. I want to see Taj Mahal. And if you look here, and this was the view Shah Jahan was craving for when he was in prison, that he wants to see the reflection through the semi-precious stones. Obviously the semi-precious stones are no longer there. God knows who has taken them. And finally, the last king of the day, it is Aurangzeb. औरंगजेब के बारे में मैं ज्यादातर बात आपको बता चुका हूं, कैसे वो वॉरियर था, पॉलिसी ऑफ एग्रेशन थी, मराठा से वो जीत नहीं पाया। आई जस्ट पुट इट हियर फॉर यू अगेन, पॉलिसी ऑफ एग्रेशन, और दिस इज वन। देन मराठास को ये हरा नहीं पाया। और तीसरी बात जो इसके बारे में आती है, हाँ लेकिन एक चीज थी, ही रियली एक्सपेंडेड द मैप ऑफ इंडिया, और कहाँ कहाँ पूरा फैल चुका था। अब इफ यू लुक एट द मैप, जो डार्क ब्लू सा कलर है इसके अंदर ये अकबर का था, और लेकिन अगर देखें शाहजहां और औरंगजेब को भी डाल लें तो उन्होंने ये सारे एरिया भी कवर कर लिया था, जो कि ये दूसरे फिरोजी से कलर में है। नाउ ग्रेट एम्पायर, एज सेड अर्लियर,
ही डिक्लाइन बिकॉज ऑफ, अब क्यों खत्म क्यों हो गया था ये, ही डिक्लाइन बिकॉज ऑफ ओवर सेंट्रलाइजेशन. नाउ दीज वर द अर्लियर मुगल रूलर्स एंड कॉमनली नोन, जो सबको पता होते हैं. इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम लेटर मुगल रूलर्स की बात करेंगे, जिसके बारे में कम लोगों को पता होता है और उनके बारे में हल्की सी ज्यादा डिटेल होगी. इतनी इंफॉर्मेशन देंगे आपके ज्यादातर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आंसर्स हल हो जाने चाहिए. ठीक है जी. एंड इफ यू वांट मी टू डिस्कस एनी ऑफ दीज थिंग्स इन मोर डिटेल आई कैन डू दैट, बट दैट इज जनरली नॉट इन सिलेबस एंड दैट इज नॉट पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. ये मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाह रहा था. अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, वी विल बी स्टडिंग अबाउट द लेटर मुगल्स. लेटर मुगल से अगर जस्ट फॉर दोज हु आर क्यूरियस मैं आपको बता सकता हूं कैसी चीजें उसके अंदर आएंगे, कैसे आएंगे. जैसे विल टॉक अबाउट बहादुर शाह, राइट, he was a very prominent. Then I'll just talk about prominent ones. Then we'll talk about Muhammad Shah Rangila, and then there is very important, and his name is Farooq Siyar. So this guy will be there, and we will of course in between there are many more kings, and we'll end with all the world's favorite poet. इसकी पोइट्री के लिए से जाना जाता है जाफर, और जिसने जाफर नामा भी लिखा था, और नामा किसके अंदर होता है, think for yourself, I will not answer that for you. So यही है. and if you like this lecture and if you want us to improve or whatever, please comment, put a question or your observation. We will try to improve in all my humbleness. and you want to discuss history, next time you come please इस lecture को दोबारा सुन के आइए. and see, the biggest support for me doing this work is if you spread the word about this, and that is possible when you subscribe to us and share this video and like us on Facebook channel, which is Fantastic Fundas. That will be really encouraging for us. So that is all for now. Thank you for watching.